This is SIP network element. Okay. So there is multiple network element. First one is proxy server. Inside SIP network, there are multiple components. But first one is proxy server. First one is proxy server. Then first one is actually, let's see, start with user agent. First one is user agent. Second one is proxy server. Then third one is registrar server. Let's see, register server. Okay, third one is location. Fourth one is location server. As name suggests, it provides users location, possible users location, and users location is stored in location server. And third one is redirect server. So हमारी ये component है and ये हमारे multiple components हैं inside SIP network. Okay, so just like it is user agent. So what is user agent? Let's see. This is a proxy server. So let's discuss our first user agent. First one is user agent. So what is actually user agent? So user agent is nothing but it's just end point of a SIP network, just like you and me. So this is your SIP network. Okay, this is your SIP network, and this is a user A, and this is your user B. Okay, they are peers actually. User A, this is your user B. This is your SIP network. This is your SIP network. Okay. Now user A and B wants to communicate with each other. Then user A must have to send some request, to SIP network. Then SIP network will process and forward this message to party B. Okay, then B party answer the message to SIP network. Then SIP network will forward this answer message to A party. Now this is handshaking is completed. Okay. So what is user agent? User agent is a end point of a SIP network. SIP network के ये end points हैं, just like a user है. So basically the दो type के user agent होते हैं. User agent type. First one is user agent client, and second one is user agent server. Okay. So what is user agent client and user agent server? Depending upon the direction of message. Who is sending direction? Who is sending message? जो भी request originate करेगा. If a party originating request, then a party is called as user agent client. If a party originating request, then a party is known as user agent client. And now what is then B party is by default user agent server. So what is user agent server? User agent server always receive request. It receive request from a party. User agent server is receive request from other party and send a response. User agent server always receive request and send responses. And what is user agent client? Is always send a request. Is always send a request and receive response. Okay. I think you got. What is user agent? User agent always receive. User agent client always send a request and receive response. In simple word, just see. दो party लेते हैं. This is your A party. This is user B, and this is your SIP network. This is your SIP network. Okay. This is user A. User B. Now, by default, A party and B party wants to communicate with each other. Now, A party send a request to B party that yeah, I want to send some data. This is first thing, request. Okay. Then just like A party ने B party को call किया, ठीक है, voice call किया, एक voice call करने के लिए SIP request generate किया. Then B party answer the call and send a response.
then B party send a response. Okay, after response, media is established between A party and B party. This is your media, real-time media using RTP protocol. Now देखो ए पार्टी क्या कर रहा है, ए पार्टी यहाँ पर रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो जो भी रिक्वेस्ट को ओरिजिनेट करता है इज नोन एज यूजर एजेंट क्लाइंट। क्लाइंट इज ऑलवेज सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्स, but is depend upon for only single message. In a same call, user agent client may become user agent server, and user agent server may become user agent client depending upon who is sending request. Is not always fixed. जैसे मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ओके, मैंने आपको कॉल इनिशिएट किया, तो अभी प्रेजेंट इस पर्टिकुलर इस मैसेज के लिए मैं क्या हूँ, यूजर एजेंट क्लाइंट हूँ, आप क्या हो, यूजर एजेंट सर्वर। बट ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग द इंटायर कॉल ये फिक्स है कि मैं यूजर एजेंट क्लाइंट रहूंगा, आप यूजर एजेंट सर्वर रहोगे, नहीं। इट डिपेंडिंग अपॉन कि मैसेज कौन सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट कौन सेंड कर रहा है। हु इज सेंडिंग रिक्वेस्ट इज नोन एज यूजर एजेंट क्लाइंट, हु इज रिसीविंग रिक्वेस्ट यूजर एजेंट सर्वर। सो यूजर एजेंट सर्वर ऑलवेज सेंड रिस्पॉन्स एंड रिसीव रिक्वेस्ट, एंड यूजर एजेंट क्लाइंट इज ऑलवेज सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्स। ओके, इसको ऐसे समझो, ये फिक्स नहीं है। अभी सेम कॉल में, सेम ड्यूरिंग द सेम कॉल, यूजर एजेंट क्लाइंट ए पार्टी मे बिहेव लाइक यूजर एजेंट सर्वर, and B party may behave like user agent client. Now he is behaving like user agent server, but after some time it may behave like user agent client. How? A party and B party आपस में communicate कर रहे हैं during via voice call. Okay. Now बी पार्टी ने क्या किया, वॉइस कॉल को टर्मिनेट करने का रिक्वेस्ट कर दिया, जस्ट लाइक मैंने आपको कॉल किया है, ठीक है, हमारी आपकी बातें हो गई हैं। तो इट डिपेंड करता है ना कि मैं भी वॉइस कॉल को टर्मिनेट कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, आप भी टर्मिनेट कर सकते हो। ओके, सो जस्ट लाइक बी पार्टी ने टर्मिनेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट फॉर कॉल टर्मिनेशन। ओके, देन यहाँ से क्या आ जाएगा, ओके, ये क्या बोल देगा, ओके, यानी रिस्पॉन्स है, ओके, यहाँ से रिस्पॉन्स जस्ट लाइक बाय, ओके। सो इसके लिए क्या है, रिक्वेस्ट, यहाँ से सिप रिक्वेस्ट, कॉल को टर्मिनेट करना है। अब रिक्वेस्ट फॉर कॉल टर्मिनेशन, दैट मीन्स यू आर सेंडिंग ए सिप रिक्वेस्ट। सो पर्टिकुलर सेम कॉल में देखो अभी क्या है, इस पर्टिकुलर इस ट्रांजैक्शन के लिए आपका कौन है, यहाँ पे यूजर एजेंट क्लाइंट कैसा बिहेव करेगा, ये बी पार्टी कैसा बिहेव करने लगेगा, यूजर एजेंट सर्वर, तो यूजर एजेंट क्लाइंट। नाउ बी पार्टी बिहेविंग लाइक यूजर एजेंट क्लाइंट, एंड ए पार्टी देखो इस टाइम क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है और रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है। तो सेम कॉल में आपने देखा ना, सेम कॉल में यूजर ए पार्टी मे बिहेव लाइक यूजर क्लाइंट, यूजर एजेंट क्लाइंट, एंड मे बिहेव लाइक यूजर एजेंट सर्वर। इट नॉट फिक्स एक्चुअली, इट डिपेंड अपॉन हु इज सेंडिंग रिक्वेस्ट। सो जो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा वो क्या बनेगा, यूजर एजेंट क्लाइंट, और जो भी रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा वो क्या बनेगा, यूजर एजेंट सर्वर। सो ये फिक्स कभी भी नहीं होगा ड्यूरिंग द सेम कॉल। ये मे बी 3 to 4 टाइम्स ये कभी यूजर एजेंट क्लाइंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, कभी यूजर एजेंट सर्वर की तरह बिहेव कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हु इज जनरेटिंग रिक्वेस्ट। ओके, जो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा वो क्या बनेगा, उस पर्टिकुलर उस ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे उसे, यूजर एजेंट क्लाइंट। सो क्लियर है, यूजर एजेंट क्लाइंट एंड यूजर एजेंट सर्वर। एनीवन, एनी डाउट? Clear, sir. Clear, sir. Clear. ओके, मुकेश। Yes, sir, it's clear, sir. No issue. Okay, so okay. So user agent client. So first element is user agent. So what is user agent? These are the endpoint of a SIP network. And these are two types. First one is user agent client and user agent server. So what is user agent client? User agent client always send a request
and receive response. And what is user agent server? User agent server always receive request and send response. That's it. Okay. Now this is proxy server. So inside SIP network now there is multiple servers there, like proxy server. So let's see. ये आपका SIP network. This is your SIP network. Okay. This is your SIP network. Now inside SIP network there is a proxy server. There are some location server which provide user location. There is registrar server which provide registration. Okay. Redirect server. ये ऐसे multiple ये आपके क्या है? Proxy server है. Proxy server is denoted as P. Okay, always denoted as P. Now, location server always denoted as LS. Location server. Okay, registrar. This is your registrar. Registration purpose. Okay, and this is your redirect server. Your redirect server. So first of all, ये देखते हैं what is redirect server, what is proxy server. Okay, so start with proxy server. Start with proxy server. Okay. Now, what is proxy server? You know, this is user agent client. This is your user agent server. Okay. Your user agent client. Here is your user agent server. Now, between user agent client and user agent server, between two SIP users, like me, between me and you, there is a SIP network. Okay. Just like our operator. Between you and me, there is our operator is there. So inside our operator, there is a proxy server is there. So I am going to mention here. This is your proxy server. Inside with between two users, there are multiple servers. Okay, this is your proxy server. ये दो users में आपके क्या है? दो users के बीच में आपके proxy server है. Okay. So what is proxy server? हमें ये देखना कि what is proxy server. So just like user agent client originating some request, any request, then user agent client originating some request, then what is proxy server? Proxy server always just behave like a router. First point is it behave like a router. It receive request from one client and forward it to the another client. Proxy server behave like a routers. It receive request response from one client and forward it to the another client. So ये आपके routers है. Just like आपका request एक user से request को receive करेंगे, ठीक है, और उसको process करेंगे, and then क्या करेंगे, इसको forward करेंगे other users पे. And second point, proxy server may perform user authentication and authorization. may परफॉर्म यूजर ऑथेंटिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ऐसी सर्विसेज भी, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन. जस्ट लाइक आप सिप नेटवर्क में एंट्री कर रहे हो. ठीक है, ये आपका सिप नेटवर्क, ये आपका सिप नेटवर्क है. आप सिप नेटवर्क को आप एक्सेस कर रहे हो. ठीक है, सो ये विंडो है, जस्ट लाइक गेट है. दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके, टू सिप नेटवर्क. देन ऑलवेज जैसे आप कोई सिप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो जो एंट्री पॉइंट होता है वहां पर क्या होते हैं, आपके सिक्योरिटी चेक्स होते हैं ना, कि आप ऑथराइज्ड पर्सन हो, आप ऑथेंटिकेट पर्सन हो या नहीं. सो सेम ये प्रॉक्सी सर्वर होते हैं. प्रॉक्सी सर्वर क्या करते हैं, ये यूजर का ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन भी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो इसके दो फंक्शन है मेन. फर्स्ट, it receive request from one client and forward it to another client after processing. ये रिक्वेस्ट को, एंड ये आपके रिक्वेस्ट को में मॉडिफाई, आपके रिक्वेस्ट में ये नेसेसरी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं. आपने रिक्वेस्ट जनरेट किया तो प्रॉक्सी सर्वर आपके रिक्वेस्ट में मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, नेसेसरी मॉडिफिकेशन. एंड सबसे पहले क्या करेगा, जस्ट लाइक आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड किया, ओके, आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि आप ऑथेंटिक ऑथराइज्ड यूजर हो, आप जो सर्विस यूज करना चाहते हो
वो सर्विस के लिए आप ऑथराइज्ड हो और नॉट, देन इट प्रोसेस, इफ ऑथराइज देन इट प्रोसेस। अगर आप ऑथराइज्ड हो उस सर्विस के लिए, ऑथेंटिक पर्सन हो, ऑथेंटिक यूजर हो, देन क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। एंड इफ रिक्वायर्ड इट मे मॉडिफाई द, ये रिक्वेस्ट को कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, आपके रिक्वेस्ट में कुछ चीजें ऐड भी कर सकता है। आफ्टर दैट ये क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा टू यूजर एजेंट सर्वर। सो क्लियर हुआ व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर? Proxy server is just like a router. It receive request from one client and forward to the other client. And it may also behave it may perform user authentication, authorization, and proxy server may also modify the request as per requirement. ठीक है, अगर रिक्वेस्ट को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये आपके रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बिफोर डिलीवरिंग, बिफोर फॉरवर्डिंग, ये आपके रिक्वेस्ट को मॉडिफाई भी करते हैं। सो क्लियर है व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर? ये यूजर का ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ओके, और आपका यूजर का ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रिक्वेस्ट को मॉडिफिकेशन, ठीक है। और राउटर्स एक रिक्वेस्ट किसी एक यूजर एजेंट क्लाइंट से रिसीव करेंगे एंड अदर को ये फॉरवर्ड कर देंगे, सिंपल है। और देन यहाँ से रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे और रिस्पॉन्स को यहाँ डिलीवर, जस्ट लाइक मीडिएटर है, मीडिएटर बिटवीन टू यूजर एजेंट्स। ठीक है, नाउ कोई क्वेश्चन है किसी का? राम, सुनील, राहुल, संदेश? No, sir. It's okay. No, sir. Okay, now actually there is two types of proxy server. Okay, so this is type 1 type of proxy server. Type of proxy server. Okay, so type 1 is, first one is stateless. Is stateless proxy server. Okay, second one is stateful proxy server. Stateful proxy server. Okay, so what is stateless proxy server and what is stateful proxy server is texting. Okay, suggesting when proxy servers called as stateless and when is may called as stateful. This is the question. This is user agent client. Okay, this is user agent server, and this is your proxy server, denoted as proxy server, denoted as C. Okay, so for example, a user agent client generating a request. Okay, and request is received by proxy server. Now, what proxy server does? User authorization, user authentication. It may also modify the request, and before after modification, it forward to user agent server as request, who is the recipient of the request, and forward the request to recipient. This is your request. Okay, then when आपका proxy server जो है, ये कब stateless proxy server की तरह behave करेगा, कब ये stateful की तरह behave करेगा, ये डिपेंड करता है प्रॉक्सी सर्वर की फंक्शंस पर। सो व्हाट इज स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर? स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं, ये रिक्वेस्ट को जस्ट इसने रिसीव किया। ओके, रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे एंड यूजर ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बट स्टेटलेस, इसको ऐसे समझो कि मेमोरी लेस, ऐसे समझना है। ये इस मैसेज को रिसीव किए ना, सो इस मैसेज का कोई भी इंफॉर्मेशन, इस मैसेज का, इस सिप मैसेज का स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर will not store any information of this request. If proxy server P behave like stateless proxy server, then ये इस मैसेज का कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं, स्टोर नहीं करेगा।
इस मैसेज का कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा। जस्ट इसने मैसेज को रिसीव किया, रिक्वेस्ट को रिसीव किया एंड फॉरवर्ड कर दिया। देन यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स को रिसीव किया और इसका कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा एंड जस्ट फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। सो रिलेटिवली ये थोड़ा सा फास्ट है कि हमें कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पर हम स्टोर नहीं करें, मीन्स इस मैसेज का कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी इस मैसेज के इनसाइड क्या है इसका कोई भी इंफॉर्मेशन लेते नहीं, जस्ट रिसीव फॉरवर्ड एंड फॉरगेट, रिसीव फॉरवर्ड एंड फॉरगेट, ये इनके कॉन्सेप्ट हैं किसके, स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर के। सो व्हेन रिक्वायर्ड, अभी जैसे इन्होंने स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर ने एक रिक्वेस्ट को यहाँ पर रिसीव किया, ठीक है, और इस रिक्वेस्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन इसने स्टोर नहीं किया, डायरेक्टली क्या कर दिया इन्होंने, रिसिपेंट को, फाइनल रिसिपेंट को इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और नेक्स्ट हॉप को या नेक्स्ट डेस्टिनेशन को इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। अभी कुछ टाइम बाद यूजर एजेंट सर्वर ये बोलता है कि नहीं मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है, आई हैव नॉट रिसीव एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड। सो प्रॉक्सी सर्वर क्या ये प्रॉक्सी सर्वर इटसेल्फ इस रिक्वेस्ट को रीट्रांसमिट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बिकॉज इसने इस मैसेज का कोई इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं किया है। सो अगर इसको रीट्रांसमिशन करना होगा, स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर को रीट्रांसमिशन करना होगा, तो किससे बोलेगा, आस्क फॉर यूजर एजेंट क्लाइंट, क्या प्लीज रीट्रांसमिट, प्लीज रीट्रांसमिट, है ना, ये क्लियर है, प्लीज रीट्रांसमिट रिक्वेस्ट अगेन, क्लियर है ना। बिकॉज ये रीट्रांसमिशन क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर विल नॉट स्टोर एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये किसी भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता है। सो ये क्या करता है, रीट्रांसमिशन भी नहीं कर सकता, इज जस्ट रिसीव रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड एंड फॉरगेट, ये कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता। तो रीट्रांसमिशन फर्स्ट पॉइंट है, स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, रीट्रांसमिशन नहीं कर सकता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ICSCF, इंट्रोगेटिव कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन एग्जांपल। ये क्या है, स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर है, वी विल सी इट लेटर ऑन, ओके। And if proxy server behave like stateful, then what happen? It always first it receive request, then store all information of the request or response, then forward. And whenever required, it may retransmit the request itself without asking with user agent client. सो प्रॉक्सी सर्वर ने क्या किया, यहाँ से यूजर एजेंट क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट जनरेट किया। सो प्रॉक्सी सर्वर, अगर यहाँ पर इफ प्रॉक्सी सर्वर P बिहेव लाइक स्टेटफुल, देन व्हाट हैपन, first it store the information, first store the information of this message, okay, this request, and then forward it to user agent server, and whenever required, जब भी required होगा, इस same message को क्या करेगा, दोबारा retransmit कर सकता है। So stateful proxy server may retransmit the request whenever required. So what is a stateful proxy server? It receive request from one client and store all information of the request or response, then forward it to user agent server, and whenever required, stateful proxy server can retransmit the request itself. ये रीट्रांसमिशन कर सकता है, ठीक है, बिकॉज इस मैसेज का ये जीरोक्स, जस्ट लाइक एक जीरोक्स कर लेता है, सेम मैसेज को इसने जीरोक्स कर लिया, देन ओरिजिनल मैसेज को इसने फॉरवर्ड किया, और एक जीरोक्स मैसेज इसने अपने पास रखा है, ओके। और whenever required, it may retransmit the request without asking user agent client. So clear है stateless and what is stateless and stateful? जस्ट लाइक ऐसे समझ लो, आप याद कर लो कि यहाँ स्टेटफुल मतलब मेमोरी है इसके पास, ये चीजों को रिमेम्बर रखता है कि कितने मैसेज हमारे यहाँ से फॉरवर्ड हो रहे हैं, क्या क्या मैसेज फॉरवर्ड हुए हैं, ठीक है, सारे मैसेज की इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। जस्ट लाइक आपके फ्रेंड ने आपको एक कोई लेटर दिया,
कि उस फ्रेंड को दे देना, किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है, एक लेटर। बट आप स्टेटलेस होगे तो क्या करोगे, उस लेटर को रीड नहीं करोगे कि क्या लिखा है इस लेटर के अंदर, वो सिंपली अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है, दे दोगे कि भाई उसने दिया हुआ है। बट अगर आप स्टेटफुल हो तो क्या करोगे, पहले उस लेटर को देखोगे, जैसे लेटर रिसीव होगा पहले उसको पढ़ोगे, रीड करोगे, देन उसका एक पिक्चर भी ले लोगे, फोटो, देन उसको अपने फ्रेंड को दोगे, ठीक है। ये आप स्टेटफुल है, जरूरत पड़ने पर आप उस लेटर को दोबारा भी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने उसका जिरोक्स कर लिया है, उसका सारा इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर लिया है उस लेटर का। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है, स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर एंड स्टेटफुल। सो स्टेटफुल प्रॉक्सी सर्वर रिलेटिवली थोड़ा स्लो है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग में आप देख रहे हो ना, फर्स्ट ये मैसेज को क्या कर रहा है, किसी भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, देन प्रोसेस करता है और फॉरवर्ड करता है। बट स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, सिंपली रिक्वेस्ट को रिसीव किया एंड फॉरवर्ड किया, फास्ट प्रोसेस होता है उसका, फास्ट है वो, फास्ट वर्किंग करता है स्टेटफुल प्रॉक्सी सर्वर, सॉरी स्टेटलेस। तो ये थोड़ा फास्ट होता है, ओके, ये आपका फास्ट होता है। और स्टेट लेस के, सॉरी, ये स्टेटफुल थोड़ा आपका स्लो होगा, ठीक है, ये स्लो बिहेव करेगा, जिसका फंक्शनिंग थोड़ा स्लो होता है। एंड स्टेटलेस का फास्ट होता है, स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर रिलेटिवली ये फास्ट होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, बिकॉज सिंपली इस रिसीव रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड। या एनी क्वेश्चन एम के? सर इसको रिलेट कर सकते हैं ना इससे, टीसीपी से और यूडीपी से। यूडीपी फास्ट होता है और टीसीपी स्लो होता है वैसे। बट वो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली वो उनके अलग हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए, याद हाँ, रखने के एग्जाम लिए। याद के लिए तो आप कोई भी, किसी को कोई भी वजह से याद कर सकते हो, याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन उनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। बाकी आप याद कर सकते हो, टीसीपी यूडीपी आगे पढ़ाएंगे, टीसीपी यूडीपी में भी डिफरेंस है कि वो फास्ट और स्लो क्यों है। क्योंकि टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है, और यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। यूडीपी जस्ट लाइक टीसीपी क्या होता है, कोई भी डेटा जैसे यूजर एजेंट क्लाइंट को, यूजर एजेंट सर्वर यहाँ पे ट्रांसमिट करना है ना, तो फर्स्ट इससे यूडी टीसीपी क्या करता है, कनेक्शन बनाएगा, यहाँ हाई करेगा, यहाँ से फिर हेलो आएगा, देन बोलेगा आई एम गोइंग टू सेंडिंग सम डेटा, प्लीज बी रेडी। आफ्टर दैट ये आपका डेटा यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, ये होता है टीसीपी। सो रिलेटिवली स्लो है, इस वजह से ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, बट गारंटी देता है टू 100% डिलीवरी, 100% सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ पैकेट, ठीक है, आपके पैकेट्स की 100% डिलीवरी देगा, गारंटीड डिलीवरी। बट यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस। जस्ट इसने ये ए पार्टी है, बी पार्टी, अगर यहाँ पे यूडीपी आप एज यूज कर रहे हो एज ट्रांसपोर्ट, तो इसने देखा कि कहाँ पर भेजना है, और उठा के इस पैकेट्स को सेंड करना शुरू कर दिया, रिसीव कर पाओ तो रिसीव कर पाओ, नहीं जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये फास्ट तो होता है, बट यहाँ गारंटी नहीं होती पैकेट डिलीवरी की। जस्ट लाइक आप लाइव वीडियो देखते हो ना, तो लाइव वीडियो में जो हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज होता है वो नॉर्मली यूडीपी यूज होता है, बट यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो जो बफर्ड करते हो ना, तो वहां पर टीसीपी यूज होता है। सो इसलिए यूडीपी टीसीपी, यानी यूट्यूब पर आप जब भी वीडियो देखते हो तो कोई भी वीडियो आपका स्किप नहीं होता है। अगर आपका नेटवर्क पुअर हो गया है फिर भी वो बफर करेगा, बट स्लो हो जाएगा, बट आपको कोई भी वीडियो, कोई भी फ्रेम वहां पर स्किप नहीं होगा, नॉट ए सिंगल फ्रेम वहां पर स्किप नहीं होता है। बट आप जैसे लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हो या फुटबॉल मैच देख रहे हो, तो वहां पर लाइव के लिए फास्ट हमें डिलीवरी करनी होती है, फास्ट डिलीवरी, ठीक है। सो वहां पर क्या चाहिए हमें, यूडीपी हम यूज करते हैं, ओके। और इसके और भी रीजन है कि वहां पर यूडीपी हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज लाइव देखने वाले तो थाउजेंड्स करोड़ ऑफ यूजर्स है ना, हम कितने यूजर से कनेक्शन एट ए टाइम एस्टेबल करेंगे। सो वहां पर हम यूडीपी यूज करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो इसलिए कभी आपका नेटवर्क पुअर हो जाता है ना, तो आप देखते होगे कि कुछ पैकेट्स, कुछ फ्रेम हमारे मिस हो जाते हैं, कि बॉल नंबर 5 आपकी मिस हो गई, या ऐसे होता है ना कि जर्क स्क्रीन आ जाता है, दिखता नहीं कुछ, है ना, ऐसा कुछ, तो कुछ पैकेट आपके मिस हो जाते हैं वहां पर, है ना। तो इसलिए ये यूडीपी क्या है, फास्ट तो होता है, बट ये 100% पैकेट्स डिलीवर होंगे इसकी गारंटी नहीं देता है। बट टीसीपी क्या होता है, पहले कनेक्शन बना लेगा, ठीक है, और 100 यहाँ पे फ्लैग एरर होते हैं,
कोई भी पैकेट अगर डिलीवर नहीं हुआ है तो इसके एरर फ्लैग्स होते हैं ना, वहां पर शो करता है, ठीक है, कि पैकेट नंबर 9 हमारा रिसीव नहीं हुआ है, प्लीज रीट्रांसमिट पैकेट नंबर 9। तो ये सब प्रोसेस टीसीपी यूडीपी देखेंगे, थोड़ा सा इंटरव्यू में पूछा जाता है टीसीपी यूडीपी भी, ठीक है। तो 1 आवर का लेक्चर है मैक्सिमम, और इतना बहुत है, ठीक है। और पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, बट हमें टारगेटेड स्टडी करनी है कि पर्टिकुलर हमारी प्रोफाइल के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है कोई यहाँ पर, किसी का क्वेश्चन? आई थिंक क्लियर होगा, है ना। सो हमने देख लिया यूजर एजेंट, ये भी 2 टाइप के होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर भी 2 टाइप के होते हैं, यूजर एजेंट क्लाइंट, यूजर एजेंट सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल प्रॉक्सी सर्वर। ओके, नाउ लेट्स सी रजिस्ट्रार सर्वर। ओके, so second thing is registrar server. What is registrar server inside SIP network? So this is your SIP network. Okay, this is your SIP network. Now inside SIP network there is a register proxy server, there is a location server, there is a registrar server. This is your registrar server. This is your SIP user. Okay, your SIP user. So now if SIP user को नेटवर्क में अभी क्या है, सिप नेटवर्क को एक्सेस करना है, इसकी सर्विसेज को एक्सेस करना है। सिप यूजर वांट टू एक्सेस द सिप नेटवर्क और सिप सर्विसेज फ्रॉम द नेटवर्क, देन फर्स्ट सिप यूजर को यहाँ पर पहले क्या होना होगा, रजिस्टर करना, नेटवर्क में रजिस्टर होना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप जिम की सर्विसेज को यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो फर्स्ट पहले आप जाते हो तो क्या करते हो, जिम में रजिस्ट्रेशन कराते हो, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट में आपको क्या करना है, कोई कोर्स करना है, तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप वहां की सर्विस को यूज कर पाते हो, ठीक है। तो सेम है, तो इस टाइप की यूजर रजिस्ट्रेशन कौन सा सर्वर प्रोवाइड करता है? रजिस्ट्रार सर्वर। इट प्रोवाइड यूजर रजिस्ट्रेशन, it help user to get registered inside network or within network. So this is registrar server which help user to register within network. Clear now? And why registration is required? This is question. Why registration is required? So किसी भी सर्विस को, किसी भी नेटवर्क की सर्विस को और अदर इंस्टीट्यूट की सर्विस को और मार्केटिंग सर्विस को यूज करना है, आपको आईएमएस नेटवर्क को एक्सेस करना है, इसकी सर्विसेज को यूज करना है। ओके, then first you have to register yourself within the network. After that you can access the IMS service or SIP network service. So that type of registration is handled by registrar server. registrar server क्या करता है? रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, यूजर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को ये परफॉर्म करता है, ठीक है। क्लियर है? व्हाट इज रजिस्ट्रार सर्वर? ये देखेंगे रजिस्ट्रार सर्वर हमारा जैसे SCSCF होता है हमारे IMS में। बेस्ट एग्जांपल ऑफ रजिस्ट्रार सर्वर इज SCSCF, ओके, सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। इट बिहेव लाइक यूजर रजिस्ट्रार सर्वर, ठीक है। सो यूजर रजिस्ट्रेशन जब भी होगा यहाँ पर होगा SCSCF में, जस्ट लाइक इन 4G LTE who is registrar normally MME, okay na. And then location server. Next point is location server. What is location server? Sir, one doubt, Yeah. sir. TAS also will be a registered server, right? Third party registration is also happening in TAS. So Yeah, it can be also yes. considered. Yeah, yes, register server. Yeah, you make task may also behave like a register server because third party registration behaving. But user registration actually task perform, task perform service registration, not a user registration. Point to be clear. Okay. Task perform service registration. What type of services to be provided to the user? कि कैसी सर्विसेज यूजर को हमें प्रोवाइड करना है। सो टास्क बिहेव लाइक ए सर्विस रजिस्ट्रार, ओके, बट यूजर रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट, सर्विस रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट, ठीक है।
ओके ओके सो ये डिफरेंट है इसमें टास्क में और SCSF में। SCSF में यूजर रजिस्टर होता है और टास्क में हमारी किस किस टाइप की सर्विसेज हमें देना है उसके लिए हम रजिस्टर होते हैं HSS के थ्रू। SCSF हमारा टास्क को इन्वॉल्व करता है बेस्ड ऑन IFC। वी विल सी ऑन लेटर ऑन, है ना। ओके सर फॉर जस्ट फॉर like supplementary services, okay, so task registration is required for supplementary services. So task is behave like supplementary services registration, okay, it's not a user registration. So task will not provide user registration. User registration is always service always provided by SCSF only. Okay, then location server. What is location server? It store location of the subscriber. It store location of the subscriber. Okay, so subscribers की location कहाँ पर होगी? Location server में होगी. And example is just like HSS. HSS or UDM in 5G. This is UDM, and in 4G this is HSS. Okay. sir HSS connectivity is in diameter protocol, no? Then how Yeah, it yeah, will be a yeah. SIP network element? Yeah. It is HSS connectivity is always is based on diameter protocol. Then how can we call it as a SIP network element? It is not a SIP because it is not handling by any SIP interfaces. No, but it actually SIP network को आपके SIP network always required any location server, no? So this is the part of actually, ठीक है? Part of your SIP network, okay? Because without location server, how your SIP network SIP element to perform your call routing or any service routing? So you need at least one location server, no? It just outside it. Location server is not inside your IMS network. It's just outside your IMS network, okay? But it help your IMS network. So that's why I'm calling it as a SIP network element. Okay. It support your IMS user or SIP network to access the location of, to store the location of subscriber. Huh? Okay, so ये location Hello. server भी, हाँ, okay, yeah. सर ये सिप यूजर है, ये जब रजिस्टर सर्वर पे जब कोई भी अपना एक रजिस्टर लोकेशन पे स्टोर करेगा, राइट? रजिस्टर सर्वर पे मैं दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, लिंक एक्सपायर हो रहा है, प्लीज ज्वाइन फास्ट, ओके। ओके।